Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Raja Omar Yunus and I am here with you with lecture number 8 on communication, which is part of management theory and practice. स्टूडेंट्स, हम आज एक अहम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा मामलात में एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस लेक्चर के अख्ताम पर हमारी कोशिश होगी कि हम समझ सकें कि कम्युनिकेशन क्या है, how to differentiate between interpersonal and organizational communication. We'll be discussing various functions of communication, the process of interpersonal communications. We'll be seeing various components of communication process. We'll list the communication methods managers might use. We'll also be describing non-verbal communication and how it takes place, and we'll also see various barriers to effective interpersonal communication and how we can overcome them. Then we'll see the organizational communication, the flow of communication in organizations, the common communication networks, the concept of grapevine. We'll also see how the information technology assists us in communication, and we'll also be seeing the communication issues in today's communication. Now, coming over to what is communication. अजीज तलबा, ये वो लफ्ज़ है जिसको हम रोज़मर्रा के मामलात में बकसरत इस्तेमाल करते हैं, मगर शायद ये समझे और जाने बगैर कि इसकी कितनी अफादियत है और ये कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बात जो हम कहना चाहते हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, दूसरे तक उन्हीं मकासद के साथ पहुंचाएं। तो आइए देखते हैं कि इस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन, transfer and understanding of meaning. Transfer means the message was received in a form that can be interpreted by the receiver. मतलब ये कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूं या पढ़ा रहा हूं वो उसी तरह ही आपके जहनों पर नक्श हो जाए, आपको समझ आ जाए। और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज का मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग मैसेज इज नॉट द सेम एज द रिसीवर एग्रीइंग विद द मैसेज। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं जरूरी नहीं कि आप 100% उससे एग्री करें या उसको समझें, बल्कि उसकी कुछ परसेंटेज आप मुझसे लेंगे, कुछ अपना शामिल करेंगे और यूं वो बात आपको समझ आएगी। सो ये एक ट्रांसफर और रिसीव करने के अमल का नाम है कम्युनिकेशन। इसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल क्या है? दो आदमियों के दरमियान। अभी इस वक्त मैं और आप तमाम हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में इंगेज हैं। मैं कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं आपको और आप उसको रिसीव करने की कोशिश करें। वेयरएज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होती है वो नेटवर्क्स पे होती है। एक खत लिखा आपने, वो तमाम लोगों को पहुंचाया। एक ऑफिस मेमोरेंडम लिखा आपने और तमाम लोगों को सर्कुलर कर दिया, एक ऐलान कर दिया। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। सो वी हैव सीन कम्युनिकेशन, it is the transfer and understanding of the meaning. We see in the interpersonal communication which is one-to-one or direct between the personnels.
and the organizational communication which is on patterns, networks and systems जो होती है वो उसको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आइए ये जब हम ये इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे इंटरप्रेट करना मतलब वो क्या होता है। नाउ विल सी व्हाट आर द 4 functions of communication. Very important to understand. सबसे पहले कंट्रोल, मोटिवेशन, emotional expression and information. Now let's see them one by one. कंट्रोल क्या है? कंट्रोल is formal and informal communications act to control individuals' behavior in organizations. भाई ये फॉर्मल और इनफॉर्मल की बात हो रही है। फॉर्मल क्या होता है? 2 persons are required to work on machine A to produce this. This is formal. Informal, यार 2 बंदे जाओ ना उस मशीन पे काम कर लो। So this is the you need to understand the difference between formal and informal communications and how to control the individual behaviors. Then is motivation. Motivation, it states communications that clarify for employees what is to be done, how well they have done it, and what can be done to improve performance. Well, students, you have performed really well in your presentations during the 5 days workshop which we had in main campus. What is this? This is the motivation which I have given to my students, that you have done well in your presentations. That means you will be motivated and you will try to put in more efforts in your coming exam. This which will in return improve your performance. I hope you are understanding it. Motivation उस थपकी को कहते हैं जो थपकी आपको नई जहतें दिखाती है। Now next, third one is emotional expression. It is the social interaction in the form of work group communications provide a way for employees to express themselves. आपको याद होगा मैंने जब आपकी वर्कशॉप हो रही थी तो प्रेजेंटेशन के लिए आपके ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स बनाने का बेसिक जो मकसद था दैट वाज टू टेक योर इमोशनल एक्सप्रेशन आउट ऑफ यू so that you can discuss your ideas with your colleagues first and then you can convey those ideas to the rest of the class. This is the social interaction. Some of you came from Lahore, कुछ रावलपिंडी से आए, जवां ज़्यादा सवात से आया, and so on. So that was to break that social barrier. We created different groups to have a better communication between or amongst the groups. And last is information. It is that individuals and work groups need information to make decisions or to do their work. मैंने आपको एक टॉपिक दिया कि you need to prepare on this topic. To few of the groups, I provided the guideline also how to proceed. Then you consulted various books, various websites, you googled and you came up with a bunch of information which you, once you came on the dais and you communicated to whole of the class. So individual work groups need information to make decisions or to do their work. I hope the functions of communication are clear.
So what was the first one? Control. Second is motivation, emotional expression. Last one is information. Now, after having understood the functions of communication, now we will move to interpersonal communication. There are 5 things we'll see. First is the message. I am giving you the message. मैं सोर्स हूं इसमें, मैं सेंडर हूं जो अपना मैसेज दे रहा हूं और अपने इंटेंडेड मीनिंग से दे रहा हूं ताकि आप ये बात समझ सकें. एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या होती है? उस मैसेज को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किया जाता है. चैनल. वी आर यूजिंग this computer or digital form as a channel of, I am using it for sending and you are using it for receiving the communication or message. Decoding. Whatever I am saying, you are translating it into your own version. And last is the noise. ये नॉइज क्या चीज है? शोर शराबा, डिस्टर्बेंसेस दैट इंटरफेयर्स विद कम्युनिकेशन. अब यहां पर जो एक चीज समझने की चीज है कि ये नॉइज है क्या. इन कम्युनिकेशन स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी की बात हम जब करते हैं, नॉइज refers to anything that interferes with the communication process between a speaker, that is myself, and an audience, yourself. Noise can be external, a physical sound. ये external है, physical है, tapping हो रही है, ये देखिए. और internal, और मेंटल डिस्टर्बेंस. आप में से जो बच्चियां हैं शायद उन्होंने ये हो कि मैंने खाना पकाना था, कपड़े धोने थे, किसी ने कोई चीज असाइनमेंट तैयार करनी थी, तो सो दैट इज अ मेंटल डिस्टर्बेंस एंड दिस कैन रिजल्ट इनटू डिस्ट्रप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस एट एनी टाइम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द नॉइज इज. Okay, now let's see it graphically. So message, through a medium, that is through a telephone or a paper or a computer, electronically or digitally, it goes to the receiver. Receiver decodes the message in the language he understands, and then he sends the feedback to the sender, that is myself. In between, he faces various internal or external noises that will affect the quality of the message which is being received. I hope you have understood the interpersonal communication process. Now, moving to the distortions in communication. ये डिस्टॉर्शन क्या होती है? शोर शराबा, जैसे पहले मैंने बात की, जिससे कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है. मैसेज एनकोडिंग. The effect of the skills, attitudes, and knowledge of the sender on the process of encoding the message, and the social cultural system of the sender.
मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि ये कम्युनिकेशन है क्या, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं आपकी जुबान भी जानता हूं जो कि उर्दू है, और द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी जानता हूं। इसलिए once I am using those both the languages for sending my message, for encoding my message, so I'm pretty sure that you were sitting at the other end of the computer will be able to understand whatever meaning I want to convey to you. Next is the message, a symbol used to convey the message's meaning, the content of the message itself, and the choice of message format and noise interfering with the message. ये वो डिस्टॉर्शंस हैं कि बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आती। आप कोई इबारत पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको समझ आती हैं, कुछ नहीं आती, और जो नहीं आती उनके आप मतलब अहज़ करने की कोशिश करते हैं और एक अपनी पिक्चर बनाते हैं। थर्ड इज द चैनल। चैनल ये मेरी भी चॉइस नहीं कि मैंने आपसे कम्युनिकेट कैसे करना है। मुझे पता है कि मैंने स्लाइड्स बना के अपना लेक्चर रिकॉर्ड करके थ्रू बिग ब्लू बटन आपसे कम्युनिकेट करना है। एंड यू ऑल्सो डोंट हैव अ चॉइस टू use any other medium, so we are restricted, but at times you can use WhatsApp, you can use Facebook, Twitter, Teams, Zoom or anything else. इसके साथ ही फिर जो जरूरी अमल होता है वो रिसीवर की स्किल्स, उसका रवैया, उसका नॉलेज कि वो और कोई सोशल कल्चरल डिफरेंस तो नहीं है, और इन चीज़ों को सामने रखते हुए वो कितनी आसानी से चीज़ों को समझता है। एंड लास्ट इज दी फीडबैक लूप। कम्युनिकेशन चैनल डिस्टॉर्शंस affecting the return message from receiver to sender। देखिए, आप के पास मुझे फीडबैक देने का तरीका मौजूद नहीं, सिवाय इसके कि जब हम बिग ब्लू बटन पर आएं, कम्युनिकेट करें, तो आप मुझे बता सकें कि फलां चीज़ हमें समझ नहीं आई या फलां टॉपिक में हमें इशू है, उस पर तो बात हो सकती है, वरना आम हालात में मैं और आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये वो डिस्टॉर्शंस हैं जो हमें फेस होती हैं। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज द इंटरपर्सनल मेथड्स, कम्युनिकेशन मेथड्स। ये 16 अदद मेथड्स हैं जो आप आपस में बात करते हुए करते। जरा इनको गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसा ही है या इनके अलावा भी कुछ है। आप आपस में बात करते हैं फेस टू फेस, कभी टेलीफोन उठा लिया, कभी आपस में बैठ के ग्रुप मीटिंग्स की, गपशप लगाई, कभी फॉर्मल प्रेजेंटेशन की सूरत में, कभी लिख के दिया कि भाई ये करना है, कभी डाकिए के हवाले खत कर दिया, कभी फैक्स यूज मशीन का इस्तेमाल किया, कभी रसाले के थ्रू, कभी कंपनी के बोर्ड पर, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख के लिखा दिया, कभी ऑडियो या वीडियो टेप्स भरी और भिजवा दी, हॉटलाइंस, टेलीफोन उठाया, बात की, ईमेल की, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस मेल्स, टेली कॉन्फ्रेंसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस एंड सो ऑन। सो ये वो आज कल के दौर की चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करें फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स। अब जरा इनको गौर से देखिए और देखें, आज से
कुछ अर्सा पहले क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अवेलेबल थी, क्या वॉइस मेल थी, क्या कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग थी, ईमेल नहीं थी, टेली कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी। सो यू आर रेस्ट्रिक्टेड। और कुछ थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो सफाई फेस टू फेस या ग्रुप मीटिंग्स के या फॉरेन प्रेजेंटेशंस मेमो के कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, इवन फैक्स मशीन्स भी नहीं थी। सो वक्त के पहिए ने चीज़ों को इम्प्रूव किया और आज हम उस कंडीशन में हैं कि हम बेहतर एक इफेक्टिव तरीके से आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आइए देखते हैं कि इन कम्युनिकेशन मेथड्स को इवेलुएट कैसे किया जाता है। हाउ टू इवेलुएट कम्युनिकेशन मेथड्स। देखें, ये वो 12 तरीके हैं। क्या फीडबैक लेना, भाई देखिए फेस टू फेस की बात है, वो किसी और की हो नहीं सकती, मगर क्या टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी अच्छी थी? क्या हमने ग्रुप जो व्हाट्सएप पे बनाया क्या वो बेहतर है? वो फीडबैक है। हमने आपस में जो क्लास में बातचीत की उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जो अब हम कर रहे हैं ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो ये तमाम वो मेथड्स हैं जिनसे आप करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी कैपेसिटी क्या है, ब्रेथ पोटेंशियल क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी है, एनकोडिंग और डीकोडिंग आसान है कि मुश्किल है, पैसा कितना लगता है, वक्त का ज़िया तो नहीं, ज़्यादा फॉर्मल तो नहीं हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं हो जाता, और क्या आपस में गर्मजोशी कायम रहती है कि नहीं क्लास में। तो कभी हम एक को छेड़ते हैं, कभी एक से सवाल करते हैं, कभी दूसरे से जवाब मांगते हैं, तो यहाँ पर तो वो बात मुमकिन नहीं। सो हर कम्युनिकेशन मेथड के एवोल्यूशन क्राइटेरिया डिफरेंट है, हर एक वेट डिफरेंट देते हैं और उनको एवेल्युएट डिफरेंट करते हैं। सो दीज 12 थिंग्स यू कीप इन माइंड व्हाइल इवेल्युएटिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स। अब देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वही जो आगे चल रही है उसी को देखते हुए अब हम आएंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी नॉन वर्बल क्या होती है? जहां पर आप अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, तो साउंड स्पेसिफिक मीनिंग्स और वार्निंग्स। आंखें निकालना, आप माँ बाप बड़े बहन भाई बच्चों की तरफ ऐसे जब एक गर्दन घुमा के आंखों से देखते हैं तो उनको पता होता है कि अभी कुछ होने वाला है, या कुछ ऐसी आवाजें जैसे यानी कि ना करो, व्हाट यू आर डूइंग। फिर बाज औक़ात एक 3 पीस सूट पहने हुआ आदमी, टाई पहने हुए, चमकदार शूज पहने हुए, ये बात तो आप समझ जाते हैं यार कि ये कोई बॉस है या कोई आदमी वो है जो जिसकी बात मुझे सुननी चाहिए। फिर बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये एक पूरी साइंस है जिसको आप सामने रख के तो फिर आगे चलते हैं, उनको देखते हैं। किसी के फेस पर ऐसा एक्सप्रेशन होता है कि आंखों की मूवमेंट, गर्दन की मूवमेंट, ठीक, तो वो ये बेसिकली सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। उंगलियों के इशारे, हाथ का इशारा। फिर है वर्बल इंटोनेशन। अभी वर्बल इंटोनेशन क्या चीज होती है? वर्बल इंटोनेशन बेसिकली आप इसको यूं समझ लें कि अल्फाज पर जोर देना, एम्फेसिस करना। मिसाल के तौर पर व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट। अब ये स्टार्ट के ऊपर अब व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट, आपने सब बात की तो समझ नहीं आएगी। व्हेन डज द मीटिंग स्टार्ट्स,
स्टार्ट और क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपका फोकस है, ये इंटोनेशन है। आई लाइक दिस वन, दिस के ऊपर जोर है। डू यू लाइक दिस वन और दैट वन, ये दिस वन और दैट वन दोनों पर फोकस है। सो emphasis that a speaker gives to certain words, phrases that conveys meaning. या भाई आप किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ये इंटोनेशन है। मत करो, चोट लगेगी, किताब खोलिए। सो ये these are the words which you use in your daily routine. Now let's see it in graphical form. हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो अब ये जो कुछ बैरियर्स हैं डिस्कस देम इन डिटेल आल्सो। फिल्टरिंग, आपको समझ आना, इमोशंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कि एक बंदा के जहनी ताकत ही इतनी नहीं कि वो खबर को अपने अंदर समो सके, तो उसको आप अगर ओवरलोड करेंगे तो वो बेचारा परेशानी के शिकार हो जाएगा। देन डिफेंसिवनेस, लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेशनल कल्चर। लेट्स सी देम इन डिटेल। फिल्टरिंग, the deliberate manipulation of information to make it appear more favorable to the receiver. ये आपका मीडिया क्या करता है, they twist the information to make it more flowery for the receivers. लेकिन आज खबर क्या है, कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं, जब इंसान कुत्ते को काटता है तो खबर बनती है। What is this? It is manipulation of information. Emotions, disregarding rational and objective thinking processes and substituting emotional judgments when interpreting messages. मैसेज को देते हुए जो रैशनल और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है उसको साइड पर रखना और अपनी तरफ से चीजों को ऐड करके आगे पहुंचा देना, मसाला ऐड करना, एक्चुअल खबर को डिस्टॉर्ट कर देना। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे पहले मैंने कहा कि बीइंग कन्फ्रंटेड विद अ क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एक्सीड्स एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू प्रोसेस इट। एक दुकानदार के सामने आप खड़े होके फिजिक्स के फार्मूले बोलना शुरू कर दें या उसे समझाना शुरू कर दें, यार ये नमक जो है ये सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें जो लाल नमक है जो ख्योड़ा से आता है उसकी ये फादियत है, और जो सोडियम है जो क्लोरीन है उसकी ये फादियत है, तो उसकी समझ से ये बालातर चीजें हैं। वो कि भाईजान नमक लेना है तो लीजिए, नहीं तो अपने घर का रास्ता लीजिए। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज दैट इंफॉर्मेशन विच यू आर गिविंग टू समबडी, इज ही कैपेबल ऑफ रिसीविंग दैट और अदरवाइज। Defensive, when threatened, reacting in a way that reduces the ability to achieve mutual understanding. वालिद या वालदा या उस्ताद जब फैंटी का प्रोग्राम बनाते हैं तो बच्चों को या शागिर्दों को बात समझ नहीं आती सिवाय गर्दन हिलाने के कि जी सब कुछ समझ आ गया, क्योंकि यू आर डिफेंसिव एट दैट टाइम, यू आर फियरिंग देम कि भाई अब अगर गलती की तो मार पड़ेगी। तो आप कहते हैं बस ठीक है यार टाइम गुजारें ताकि किसी तरह से यहां से जान छूटे। देन इज लैंग्वेज, द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इट स्पेशलाइज्ड वेज इन विच सेंडर्स यूज वर्ड्स कैन कॉज रिसीवर्स टू मिस इंटरप्रेट देयर मैसेज। You need to understand कि लैंग्वेज बहुत जरूरी है।
आप जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो लैंग्वेज पे, एक दूसरे की लैंग्वेज पर अबूर होना जरूरी है। स्लैंग्स बोलना, लोकल मुहावरे बोलना शायद दूसरे आदमी को समझ ना आ सके। लास्ट इज नेशनल कल्चर। याद रखिए, कल्चर इन्फ्लुएंसेस द फॉर्म, फॉर्मेलिटी, ओपननेस, पैटर्न्स एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन। हर इलाके का कल्चर डिफरेंट होता है और हमेशा याद है, कम्युनिकेशन में नेशनल या लोकल कल्चर को सामने रख के बात कीजिए तो आप सहूलत में रहेंगे। Now, overcoming the barriers to effective interpersonal communication. These are 5 things. Use feedback, simplify language, listen actively, constrain emotions, and watch non-verbal cues. बहुत आसान चीज़ है। फीडबैक का इस्तेमाल कीजिए, आप पूछिए कि क्या आपको समझ आई कि नहीं, क्या मैं ठीक हूं। ज़बान सहल रखें, आसान रखें और सुनिए, तवज्जो से सुनिए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, कंस्ट्रेन करें और नॉन वर्बल क्यूज की उंगलियों के इशारे, गर्दन के इशारे, जो जापानीज और चाइनीज लोग जो हैं वो नॉन वर्बल क्यूज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, समझिए, और ये पूरी साइंस है, इसको समझने की कोशिश करें तो आप आसानी में रहेंगे। एक्टिव लिसनिंग बिहेवियर्स हैं। अजीज तलबा, याद रखिए, जो जितना अच्छा सुनने वाला होता है वो इतना अच्छा बोलने वाला भी होता है। और अच्छा सुनने के लिए सबसे पहले डोंट ओवर टॉक, ज्यादा मत बोले, खामोश रहें और सुने। बी एम्पैथेटिक, समझें कि अगला कहना क्या चाहता है। आंखों में आंखें डाल के रखें और अगले को ये बताइए कि आपको समझ आ रही है, कभी गर्दन के इशारे से, कभी आंख के हिलारे से, कभी जिस्म के हिलारे से सवाल पूछें ताकि अगले को ये पता लगे कि आप जिंदू में हैं, आप सुनने वालों में से हैं, आप समझने वालों में से हैं। और फजूल हरकत, कभी बालों में खारिश, कभी गर्दन पे खारिश, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, ये मत करें, क्योंकि जब आपके सामने करेगा तो आप भी डिस्ट्रैक्ट होंगे। इस सुनने बोलने वाले के ऊपर तवज्जो दीजिए और पैराफ्रेज, चीज़ों को पैराफ्रेज करें। और जब कोई बोल रहा हो तो उसकी बात को टोके मत। ये तो हमें मना भी किया गया, सुन्नत नबी भी है कि बात को काटिए मत, टोकिए मत। तो ये 8 चीज़ें अपने पल्लू से बांध लें तो इंशाअल्लाह आप हमेशा एक कामयाब सुनने वाले और अच्छे बोलने वाले बन सकेंगे। Now we'll see the types of organizational communication. There are two: formal communication and informal communication. आम एक ज़ुबान में कहते हैं कि सरकारी और गैर सरकारी। Formal is communication that follows the official chain of command or is part of the communication required to do one's job. ये हुआ सरकारी सतह पर, सरकारी तो सरकार के लिए, मगर ऑफिशियल सतह पर, दफ्तरी सतह पर ये वो होती है कि आपने कोई काम करना है तो लिख के कहा जाता है कि भाई आपने ये काम करना है, आपको ये ड्यूटी असाइन की जाती है। Whereas informal communication, it is not defined by organizational hierarchy. ठीक है, कभी आपने नोटिस बोर्ड पे कोई चीज़ लगा दी, ठीक है, आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया,
ठीक है, उससे ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करती है और आप में जो ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर होती है। तो इनफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एट टाइम्स transform into the formal communication, whereas formal communication that cannot be transformed into informal communication. अभी जो कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशंस में फ्लो कैसे करती है, देखिए ऊपर से नीचे भी आती है, डाउनवर्ड नीचे से ऊपर, मतलब टॉपमैन से नीचे एक लेबर तक, लेबर से टॉपमैन तक, दाएं से बाएं और एक कोने से दूसरे कोने तक, कैसे downward. Communications that flow from managers to employees to inform, direct, coordinate and evaluate employees. ये क्या है जी? ऊपर से नीचे, upward कहां से? That flows from employees up to managers. क्या? employees की needs को बेहतरी कैसे आ सकती है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कुछ चीज चाहिए तो नहीं, कोई खराबी तो नहीं हो रही, तो ये नीचे से ऊपर जा रही है। लेटरल, हॉरिजॉन्टल, दाएं से बाएं, communicate that takes place among employees on the same level in the organization to save time and facilitate coordination. भाई अगर आप उन्हीं सीधी लाइनों पर रहेंगे तो वक्त का ज़िया होगा, तो आप अपने एक दूसरे से बात करके मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और डायगोनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन दैट कट्स across both work areas and organization levels in the interest of efficiency of speed. आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान, वाला मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन के दरमियान, प्रोडक्शन वाला फाइनेंस के दरमियान आपस में बात करते हैं, टाइम को कम करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। सो दीज आर 4 डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन: अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल एंड डायगोनल. Now coming up to types of communication networks. There are 3. Chain network. Communication flows according to the formal chain of command, both upward and downward. मैंने पहले बात की कि डाउनवर्ड अपवर्ड कि टॉप मैनेजर से नीचे तक आना और नीचे से टॉप मैनेजर जाना, ये चेन नेटवर्क है. व्हील नेटवर्क, व्हील नेटवर्क गोल, सेंटर में इसका हब होगा जो उस व्हील को घुमा रहा. ऑल कम्युनिकेशन फ्लोज इन एंड आउट थ्रू द ग्रुप लीडर टू अदर्स इन द ग्रुप. कि आप एक सेंटर मैनेजर हैं, तमाम कम्युनिकेशन उसको आ रही है और वो आगे कम्युनिकेशन भिजवा रहा है. तो ये व्हील नेटवर्क है कि आपने सेंटर में एक व्हील बनाया, ये एक हब है, यहां से कम्युनिकेशन आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से. सो इसके पास आ गई, तो इसने फिर आगे कम्युनिकेशन कहीं और जो भिजवानी है वो भिजवा देगा. ये व्हील हब बन गया. अब साइकिल के टायर देख लें, अब गाड़ी के टायर देख लें, तो वो ऐसे एक सेंटर में हब होता है जिस पर सारा फोकस टायर का होता है. तो हर चैनल से कम्युनिकेशन यहाँ पे आ रही है और यहाँ से आगे जा रही है. देन इज ऑल चैनल नेटवर्क. कम्युनिकेशन फ्लो फ्रीली अमंग ऑल मेंबर्स ऑफ द वर्क टीम. कि इसमें कोई कैद नहीं, सारे नेटवर्क्स का जो कम्बिनेशन है, या चेन हो, व्हील हो, वो सारे मिक्स होके हर बंदे के पास कम्युनिकेशन फ्रीली जा रही है, सो दैट एवरीबॉडी इज वेल इन्फॉर्म्ड. I hope you're clear about this. Next is grapevine. This is very interesting. ग्रेपवाइन जैसे कि नाम से जाहिर है, ये अंगूर के पौधे की तरह फैलती हुई खबर. लेट्स सी, एन इनफॉर्मल
organizational communication network that is active in almost every organization. अच्छा, ये अब है क्या? ये याद रखें, it's an informal communication network which ignores formal channels of communications and spread rumors and gossips at all levels of the businesses or organizations. मसलन कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आती हो? नहीं. सपोज करें कि द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ अ कंपनी इज नोन, कि जी कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया. ठीक है, अब एक र्यूमर, अफवाह फैलाई जाए, र्यूमर इज स्प्रेड दैट दिस मच प्रॉफिट इज देयर. अभी प्रॉफिट का तो पता है आपको, एंड ऑन दैट बेसिस बोनस इज डिक्लेयर्ड. अफवाह फैला दी ना कि भाई लॉकडाउन तो हो चुका है, लॉकडाउन तो हो चुका है, फैक्ट है. 30 तारीख से कर्फ्यू भी लग जाएगा. र्यूमर. अभी आपका जो सीईओ और जो मैनेजर हैं वो दे आर हैविंग अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप. सो सीईओ मे बी इन रिलेशन विद द प्रोडक्शन मैनेजर. आप ये कह सकते हैं यार वो दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, तभी उस पर बड़ी मेहरबानी है. सो दिस इज व्हाट इज grapevine. Dear students, we are almost at the end of the lecture. Last thing which you must remember is to have a politically correct communication. इसका मतलब ये है कि पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करना, गैर पार्लिमानी गुफ्तगू से परहेज करें. Do not use words or phrases that stereotype, intimidate or offend individuals based on their differences. कभी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल या चुनाव ना करें जो कि दूसरों की आज़ादी का बायस बने. Choose the words carefully to maintain as much clarity as possible in communication. I'm sure that today's session was fruitful for you, and as I always say that I expect a good deed of preparation from you, and when we get together on Big Boot Button, I would expect from all of you to raise questions to understand the subject in a more befitting manner. Thank you very much, and Allah bless you.